Assalamualaikum. Today my topic is on parathyroid gland. So we start with the parathyroid gland. First of all, where is the location of the parathyroid gland? Parathyroid gland, they are located on the posterior side of the thyroid gland. They are in numbers. 2 are above and 2 are below the thyroid gland. Then when we see the parathyroid hormone, histologically we see हमें blood vessels नजर आएंगी, capsules नजर आएंगे, and there are 2 types of the cells नजर आएंगे, that are chief cells and the oxyphil cells. Chief cells are the main cells which secrete the parathyroid hormone. They are small in numbers, they are small in size, but they are increased in numbers. ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में आप देखें कि इनके नंबर्स जो हैं they are greater in number but they are smaller in the size. As compared to the oxyphil cells, they are larger in the size. बट इनके नंबर्स जो हैं एज कंपेयर टू चीफ सेल्स वो कम होते हैं. द चीफ सेल्स आर द मेन सेल्स ऑफ द पैराथायरॉइड हार्मोन एंड दे सीक्रेट द हार्मोन parathyroid hormone. Okay, and the oxyphil cells, still their function is unknown and they are considered as the degenerated हमारे पास chief cells समझे जाते हैं. So this is very important MCQ point of view, that which cells secrete the parathyroid hormone. The chief cells, they secrete the parathyroid hormone. Then this parathyroid hormone, they mostly act on the bones, kidney and the intestine. These are the 3 body parts in which this hormone act on, and their main effect is that they increase the blood calcium ion concentration and decreases the phosphate ion concentration. Okay, so the most important function of the parathyroid hormone is they will increase the blood calcium concentrations, और ये phosphate की concentrations को decreased कर देता है. Calcium concentration increased means hypercalcemia, and decreased phosphate ion concentration means hypophosphatemia, और इसको हम लोग कहेंगे hyperphosphaturia, means increased phosphate हमारे पास excretion हो जाएगी. So this is the main effect of the parathyroid hormone. So the main effect of the parathyroid hormones, as I told you earlier, that parathyroid hormone mostly act करता है bones पर, kidney and the intestine पर. First of all, हम इसका action read करते हैं on the bones पर. On the bones, there are 3 important type of the cells, that are osteoblast cells, osteoclast cells and the osteocytes. These are the important हमारे पास 3 cells हैं which are present होते हैं in the bones में. The osteoblast cells, these are the type of the cells, ये responsible हैं as the name indicate bone formation. ठीक है, osteoclast ये responsible है for the bone resorption. So what is bone resorption? ये क्या होता है? Bone resorption means हमारे पास destruction of the bone tissues. बोन्स टिश्यूज की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से हमारे पास बोन लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा एंड डिक्रीज्ड इन द बोन मैस एंड द डेंसिटी उसकी कम होना स्टार्ट हो जाएंगे. एंड द लास्ट सेल्स आर द ओस्टियोसाइट्स. दीज आर द सेल्स जो मेंटेन करते हैं हमारे पास बोन मैस को मेंटेन करते हैं. सो पैराथायरॉइड हॉर्मोन्स जो है मोस्टली बोन्स पर ओस्टियोक्लास्ट सेल्स पर एक्ट करते हैं. दिस इज योर एमसीक्यू. ओस्टियोक्लास्ट सेल्स पर ये एक्ट करते हैं और बोन रिजॉर्प्शन करवाते हैं. व्हेन देयर इज बोन रिजॉर्प्शन, दैट इज बोन डिस्ट्रक्शन. सो जब बोन की डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन फ्रॉम बोन टू द ब्लड इंक्रीज हो जाएगी. सो हमारे पास इंक्रीज्ड कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंसंट्रेशन, यहाँ पर बोन्स पर कैल्शियम और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. हाउ? This parathyroid hormone increase the osteoclast activity, वो increased कर देता है. ठीक है. So this action of parathyroid hormone bones पर ये divided है into 2 phases पर, rapid and the slow phase. Rapid phase हमारे पास क्या होता है? दोनों में एक ही काम होगा कि
क्लास्ट जो सेल्स हैं इनकी एक्टिविटी इंक्रीज करनी है, हमने बोन की रिजॉर्प्शन करनी है. सो जब बोन रिजॉर्प्शन का मतलब है बोन डिस्ट्रक्शन होगी, सो कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन बोन से ब्लड में हमने इंक्रीज करनी है. सो रैपिड फेज एज द नेम इंडिकेट विद इन मिनट्स में हो जाएगा. स्लो फेज जो है इट टेक्स डेज एंड वीक्स लेगा कि ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कर सके, ऑस्टियोलाइसिस कर सके. सो इन द रैपिड फेज इसे जल्दी से बोन रिजॉर्प्शन करना है तो ये इंक्रीज कर देगा एक्टिविटी ऑफ द ऑस्टियोसाइट्स की एंड ऑल्सो द ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा. और एंड इन द स्लो फेज इसको स्लोली डिस्ट्रक्शन करनी है बोन्स की. तो फर्स्ट दे फॉर्म द न्यू ऑस्टियोक्लास्ट. मैंने आपको पहले बता दिया ऑस्टियोक्लास्ट. व्हाट इज ऑस्टियोक्लास्ट? दीज आर द इंपॉर्टेंट बोन सेल्स व्हिच आर causes the bone resorption and then they causes the bone resorption, bone destructions की cause कर देंगे. ठीक है. Then this parathyroid hormone actions on the kidney. सो हमने बोन्स का एक्शन डिस्कस कर लिया कि बोन्स में ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी इंक्रीज करता है पैराथायरॉइड हार्मोन एंड दिस विल कॉजेस इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंसंट्रेशन. ऑन किडनी पर क्या करता है? ऑन किडनी वी नो दैट देयर इज distal convoluting tubule. In distal convoluting tubule they will stimulate the calcium एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट कर देगा और हमारे पास प्रोजीमल ट्यूब्यूल्स पर ऐड कर पैराथायरॉइड हार्मोन इनहिबिट कर देगा फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन. सो हमारे पास फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी. सो बॉडी में फॉस्फेट का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगी. ठीक है. हाउ? दे विल इनहिबिट द सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्ट. In the proximal convoluting tubules, there is a channel that is sodium phosphate co-transport. ठीक है. Co-transport means ये सोडियम और फॉस्फेट दोनों को साथ ट्रांसपोर्ट करता है. So this parathyroid hormone इसका किडनी पर क्या इफेक्ट है कि DCT distal convoluting tubules पर ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करेगा, बॉडी में कैल्शियम ज्यादा होगा और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को कम करता जाएगा क्योंकि ये इसकी एब्जॉर्प्शन को रोक देगा और फिर हमारे पास फॉस्फेट बॉडी से बाहर निकलती है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड फॉस्फेटोइडिया. सो द ओवरऑल इफेक्ट हमारे पास किडनी में क्या है कि कैल्शियम इंक्रीज होगा और फॉस्फेट डिक्रीज होगा एंड ऑल्सो there is increased absorption कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन आयंस की भी होगी और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन होती है फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम. इंपॉर्टेंट एक्शन हमारे पास पैराथायरॉइड हार्मोन का किडनी के ऊपर ये भी है कि ये अल्फा 1 हाइड्रोलेस, दिस इज द एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द किडनी. ये एंजाइम इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये विटामिन डी जो है ये इसकी एक्टिव करता है, इसकी फॉर्म को एक्टिव बनाता है. मींस 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सीफेरॉल, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी. ये एंजाइम इसको एक्टिव करता है. सो पैराथायरॉइड हार्मोन किडनी पर पहले कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है, फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन कम कर फॉस्फेट को बॉडी से बाहर निकालता है, फॉस्फेटूरिया, एंड ऑल्सो ये इसकी हाइड्रोलेज एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है. ये डायग्राम आपको ये बताना चाह रही है कि व्हेन देयर इज क्रॉनिक किडनी डिजीज, कोई भी क्रॉनिक किडनी डिजीज अगर हमारे पास हो गई तो क्या होगा? किडनी की डिजीज हुई है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगी. डीसीटी पर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो कैल्शियम बॉडी से बाहर निकलता जाएगा. फॉस्फेट पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है? फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है एंड फॉस्फेटूरिया करता है. सो व्हेनेवर हमारे पास किडनी डिजीज आएगी तो ये इसको फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन बॉडी में इंक्रीज कर देगा. दिस इज योर इंपॉर्टेंट. हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं कि कोई किडनी की डिजीज हो गई तो क्या होता है. और इंपॉर्टेंट ऑन द किडनी पैराथायरॉइड हार्मोन अल्फा 1 हाइड्रोलेज एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है. सो किडनी डिजीज हो गई तो हमारे पास ये एंजाइम भी एक्टिव नहीं होगा. सो वी हैव लर्न द टू इफेक्ट ऑफ द पैराथायरॉइड हार्मोन ऑन बोन्स. They will increase calcium absorption and phosphate absorption on the kidney.
They will increase calcium absorption, decreased phosphate absorption, increased phosphate excretion, and also activate the alpha-1 hydrolase activity. And the last parathyroid hormone action on the intestine. Intestine में there is no direct action. हमारे पास indirect action होता है. How? Parathyroid hormone increase करेगा कैल्शियम की absorption को, but indirectly. फर्स्ट किडनी जो है वो alpha-1 हाइड्रोलेज एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा जब पैराथायरॉइड हार्मोन आएगा. एंड दिस alpha-1 हाइड्रोलेज एंजाइम ये हमारे पास 25 हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सीफेरोल को, दिस इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी. अगेन दिस इज योर एमसीक्यू. पूछा जाता है कि व्हाट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी. 25 हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सीफेरोल को कन्वर्ट कर देगा इनटू 125 हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सीफेरोल. एंड दिस हमारे पास जो एक्टिवेटेड फॉर्म है, दिस एक्ट ऑन द इंटेस्टाइन एंड this will finally increase the calcium absorption as well as the phosphate absorption. There is no direct action. ठीक है. सो हम समराइज करते हैं इफेक्ट पैराथायरॉइड हार्मोन्स का. बोन्स पर देयर इज इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन बाय विच सेल, ये पूछा जाता है, दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट सेल. सो हमारे पास कैल्शियम बॉडी से बाहर निकल, बोन से बाहर आकर ब्लड में आ जाएगा एज वेल एज फॉस्फेट. पैराथायरॉइड हार्मोन किडनी में क्या करता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को एक्टिव करता है. हाउ? हमारे पास बाय रिलीज ऑफ द एंजाइम alpha-1 हाइड्रोक्सीलेज. ये भी एंजाइम आपसे पूछा जा सकता है. एंड दिस विल इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज द फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन. एंड दिस विटामिन डी एक्टिव फॉर्म हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इंटेस्टाइन एंड दिस विल कॉज इंक्रीज कैल्शियम एज वेल एज द फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन.